Hello dear students. So today I welcome all of you to this second lecture of spectroscopy. As we know that we are studying UV visible spectroscopy. In the last lecture also we had a discussion on that topic and we tried to understand the concept, basic principle of UV visible spectroscopy. Why is it known as electronic spectroscopy? What are electronic transitions? And then accordingly we tried to understand the concept with the help of few examples. What kinds of transitions are possible, and on the basis of that we had considered some organic compounds wherein we could find some electronic transitions. Now in continuation to that, today we will continue with UV visible spectroscopy, but yes, there are some important terms related to that particular topic, so we are going to discuss that. Apart from that, we will try to understand the applications of UV visible spectroscopy. So today the agenda would be like this. We will be considering chromophores, auxochromes. Then there are certain absorption and intensity shifts that we will be discussing upon. And then finally we will try to take some problems which are related to UV visible spectroscopy. So let us start. What is a chromophore? A chromophore is a group. In general, it is originated from a word chromophore. Greek word chromophore होता है जिसका meaning होता है color carrier, right? So chromophore is a group which is responsible for imparting color to the compounds. For example, अगर हम नाइट्रो compounds की बात करें तो उसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है that is responsible for yellow color. So that is why nitro group is considered as a chromophore, right? So nitro group is considered as a chromophore. बट मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चेंज है इस डेफिनेशन में क्रोमोफोर की अगर हम बात करें. सो क्रोमोफोर ऐसा आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप होता है. अनसैचुरेटेड ग्रुप जिसमें या तो पाई बॉन्ड होगा, राइट, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो ऐसा अनसैचुरेटेड ग्रुप दैट शोज अ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट और द विजिबल रीजन, राइट. सो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन या अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो कलर हो या ना हो, बट उस ग्रुप को हम कहते हैं क्रोमोफोर, राइट. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप होता है जो कि अनसैचुरेटेड ग्रुप होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द अल्ट्रावायलेट और द विजिबल रीजन, देन इट इज नोन एज अ क्रोमोफोर, राइट. तो विजिबल रीजन कौन सा है? 400 to 800 नैनोमीटर. और हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड कलरफुल दिखता है या उसमें कलर दिखाई पड़ता है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज द एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द विजिबल रीजन, राइट. लेकिन क्रोमोफोर ऐसा ग्रुप है जिसमें एब्जॉर्प्शन अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रीजन में हो सकता है, इसीलिए हम कलर को यहाँ पर निग्लेक्ट कर रहे हैं या उसको एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं मान रहे हैं. So this is the definition that you can remember, right? I can repeat. A chromophore is defined as any isolated covalently bonded unsaturated group that shows a characteristic absorption in the ultraviolet or the visible region irrespective of the color of the compounds. For example, जैसे ये हमने ले लिया है कोई भी एल्कीन या कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया है या नाइट्रो ग्रुप ले लिया है, तो यहाँ पर देखिए अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. सो इन सभी ग्रुप्स को हम कहते हैं क्रोमोफोर्स, राइट. Let us come to the next important classification, because we know that chromophores को अगर हम देखेंगे unsaturated group मान रहे हैं, isolated unsaturated group, तो ये दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो ये कि ऐसा क्रोमोफोर जिसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, राइट. तो ऐसा अगर क्रोमोफोर होगा तो उसमें ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल होगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल एथिलीन्स, एसिटिलीन्स एक्सेट्रा. सो ऐसे एथिलीन्स और एसिटिलीन्स इनको हम क्रोमोफोर कहते हैं बिकॉज डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब एब्जॉर्प्शन किस रीजन में हो रहा है? अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में हो रहा है, राइट. तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोफोर. क्रोमोफोर क्या हो गया? एथिलीन्स, एसिटिलीन्स यानी डबल बॉन्ड क्रोमोफोर हो गया. इसी तरह अगर हम क्रोमोफोर दूसरे तरह के भी हो सकते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो और साथ में एन इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हो, जैसे उनमें ट्रांजिशन कौन सा हो जाएगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल कंपाउंड्स. कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. तो अगर आप उसके स्ट्रक्चर को लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड भी होता है यानी पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है. इसी तरह नाइट्राइल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स में भी यही कंडीशन होती है बिकॉज इट इज purely unsaturated compound having lone pair of electrons as well. So here two types of transitions are possible. Clear है? तो यहाँ पर हमको क्या दिखा कि ट्रांजिशंस के दो टाइप्स हो गए. एक तो ये हो गया जिसमें केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन
पॉसिबल है और दूसरा हो गया जिसमें पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों पॉसिबल है. सो दीज आर नोन एज क्रोमोफोर्स. नाउ लेट अस कम टू दी ऑक्सोक्रोम्स. दो टर्म्स जो हमें डिस्कस करने थे उनमें से एक था क्रोमोफोर, जिसके लिए अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया. अभी हम लोग दूसरा देख रहे हैं ऑक्सोक्रोम क्या है. सो अ कोवैलेंटली बॉन्डेड सैचुरेटेड ग्रुप. नाउ हियर यू हैव कंसिडर्ड सैचुरेटेड ग्रुप which when attached to a chromophore, जब किसी particular chromophore से वो attach किया जाता है, changes both the wavelength and intensity of absorption, maximum absorption, that is lambda max and epsilon max. हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन होता है, तो हम लोग मेजर क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स या एप्सिलॉन मैक्स. लैम्डा मैक्स क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एंड एप्सिलॉन मैक्स क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. तो क्या करेंगे कि जब भी क्रोमोफोर में ऐसा कोई कोवैलेंटली बॉन्डेड सैचुरेटेड ग्रुप अटैच कर रहे हैं जिसके अटैच करने पर जो एप्सिलॉन मैक्स है और लैम्डा मैक्स वो चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम. फॉर एग्जाम्पल एमिनो ग्रुप लगा दीजिए, एसएच ग्रुप, थायोल ग्रुप लगा दीजिए, राइट, ओएच ग्रुप लगा दीजिए, हैलोजेंस लगा दीजिए क्रोमोफोर के साथ, तो ये क्या करेगा, लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स को बढ़ा देगा. इन जनरल वो बढ़ा देता है. सो ऑक्सोक्रोम्स जनरली इंक्रीज द वैल्यूज ऑफ लैम्डा मैक्स एज वेल एज एप्सिलॉन मैक्स बाय एक्सटेंडिंग द कॉन्जुगेशन थ्रू रेजोनेंस. इनफैक्ट होता क्या है यहाँ पर कि जब आप एनिलीन का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बेंजीन रिंग है जिसमें रेजोनेंस होता है ऑलरेडी. बेंजीन रिंग में क्या होता है, रेजोनेंस होता है. अब उसमें आपने क्या किया, कोई NH2 ग्रुप अटैच कर दिया, तो बेंजीन रिंग में ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, क्रोमोफोर्स कहलाएंगे. लेकिन जब आपने उसमें NH2 ग्रुप लगा दिया, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन N के साथ उसका रेजोनेंस करा दिया, तो ये जो बेंजीन के अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेट कर जाते हैं बाहर के, यानी नाइट्रोजन एटम पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ, तो रेजोनेंस बढ़ गया, कॉन्जुगेशन बढ़ गया, राइट. और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कलर एनहांसिंग ग्रुप्स, राइट. सो यहाँ पर ये जो अल्ट्रावायलेट रीजन में अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो शिफ्ट होकर विजिबल रीजन में चला जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, राइट. सो ऑक्सोक्रोम्स क्या करते हैं, वो क्रोमोफोर्स के साथ जब अटैच किए जाते हैं तो लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स को जनरली बढ़ा देते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कलर एनहांसिंग ग्रुप्स. एंड ऑक्सोक्रोम इटसेल्फ डज नॉट शो एब्जॉर्प्शन अबव 200 नैनोमीटर, राइट. तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि ऑक्सोक्रोम खुद कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट. जबकि a combination of chromophore and auxochrome behaves as a new chromophore having different values of lambda max and epsilon max, right. जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 255 to 260 नैनोमीटर, लेकिन जब उसमें आपने NH2 ग्रुप लगा दिया तो उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 280 नैनोमीटर. क्या हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर का, जिसके लिए बिल्कुल डिफरेंट लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू हो जाती है. जैसे यही हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, राइट. लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू दी हुई है बेंजीन की 256 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर, लेकिन एनिलीन यानी उसमें NH2 ग्रुप जब आप अटैच कर देंगे तो ये लैम्डा मैक्स की और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज बिल्कुल बढ़ जाती हैं, राइट. तो NH2 ग्रुप क्या हो गया, ऑक्सोक्रोम हो गया, जो कि कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है. क्यों बढ़ाता है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, यानी उसका कॉन्जुगेशन हो जाता है, राइट. So this is how we can give the explanation for auxochrome. So auxochrome का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं. अभी हम लोगों ने क्या बोला कि जब हम ऑक्सोक्रोम को अटैच करते हैं तो क्या होता है, लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट. तो या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, राइट. तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट्स की बात करने जा रहे हैं तो पहले हम एब्जॉर्प्शन शिफ्ट की बात करेंगे. तो देखिए पहला शिफ्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, राइट. बैथोक्रोमिक शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट भी कहते हैं. सो द इफेक्ट विच कॉजेज द लैम्डा मैक्स टू शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ रीजन इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और बैथोक्रोमिक इफेक्ट. तो लॉन्गर वेवलेंथ रीजन की मतलब अगर विबग्योर में बात करें तो वो रेड रीजन की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट, राइट. So the effect which causes the lambda max to shift towards longer wavelength region is known as bathochromic shift or red shift, right. अभी ये जो bathochromic shift है ये क्यों होता है, it can be brought about in two ways. पहला तरीका क्या है, by conjugation of chromophoric groups, यानी जो chromophoric groups है, chromophoric groups क्या हो गया, जैसे डबल बॉन्ड हो गया तो उनका कॉन्जुगेशन हो गया, यानी कि उसको बढ़ा दिया, कॉन्जुगेशन को बढ़ा दिया. सो व्हेन द टू chromophoric groups are conjugated, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये बढ़ाते जाए, हम कॉन्जुगेशन की एक्सटेंट को बढ़ा दें, राइट. तो क्या होगा, लैम्डा मैक्स शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ रीजन.
यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बेंजीन है, राइट, इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर एक बेंजीन रिंग आप इसमें और ऐड कर देते तो ये नेफ्थलीन बन जाता है, और एक और ऐड कर देते तो ये एंथ्रेसीन बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 3 पेयर्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर 2 रिंग्स हो गई, तो डीलोकलाइजेशन यानी कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली बढ़ गया, और यहाँ पर उससे ज़्यादा बढ़ गया, राइट। सो यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बेंजीन के में देखेंगे तो 255 होती है, तो ये वैल्यू कितनी होती है 280 नैनोमीटर, यानी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, और एंथ्रेसीन में अगर आपसे पूछा जाए तो ये उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये अराउंड 320 नैनोमीटर हो जाती है, राइट। सो ये अगर इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो आप देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए ये बेंजीन के लिए है, सो बेंजीन के लिए वैल्यू है 255 के आसपास, फिर ये नैफ्थलीन के लिए है 280 के आसपास, और 320 के आसपास है एंथ्रेसीन के लिए, राइट। तो इस तरह से पीक्स, एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें मिलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, और उसमें कॉन्जुगेशन को अगर बढ़ाते हैं तो इस तरह से शिफ्ट होता है। इट इंक्रीजेज द कॉन्जुगेशन एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेज द लैम्डा मैक्स वैल्यू, राइट। नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द लैम्डा मैक्स वैल्यू इज by attaching auxochromes to the system, right? तो क्रोमोफोर्स को अगर आप बढ़ाते जाएं, यानी उसके एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन को बढ़ा दें, एक तरीका वो था। दूसरा ये था कि क्रोमोफोर्स के साथ आप ऑक्सोक्रोम को अटैच कर दें। तो अब आप देखिए ये ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, वो जनरली कलर को डीपन कर देते हैं, राइट। किसके कलर को? क्रोमोफोर के कलर को, लेकिन वो खुद भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। So attachment of auxochromes to a chromophore leads to the increase in the absorption towards longer wavelength and higher intensity regions, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू भी इन जनरल बढ़ जाती है, राइट। लेट अस कंसिडर फ्यू एग्जांपल्स। ये बेंजीन आप देखिए, बेंजीन लैम्डा मैक्स की वैल्यू 255। अब इस बेंजीन रिंग में आपने OH ग्रुप अटैच कर दिया। OH क्या है? ये ऑक्सोक्रोम है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये क्रोमोफोर है, राइट। ये क्रोमोफोर हो गया, पाई बॉन्ड वाला जो सिस्टम है वो क्रोमोफोर हो गया, लेकिन इसके साथ आपने सैचुरेटेड ग्रुप OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये ऑक्सोक्रोम अटैच कर दिया, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 270 नैनोमीटर हो गई। इसी तरह आप एनिलीन ले लीजिए। एनिलीन में आपने क्या किया? बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप अटैच कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सोक्रोम क्या है? NH2। क्रोमोफोर क्या है? ये बेंजीन रिंग कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ गई, बेंजीन के कंपैरिजन में ये वैल्यू बढ़ गई, राइट। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ absorption shifts can be observed. Now hypsochromic shift, right? तो पहला कौन सा शिफ्ट था? बैथोक्रोमिक, जिसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है। अब ये दूसरा है hypsochromic shift और इफेक्ट। So the effect which causes the absorption maximum, that is lambda max, to shift towards shorter wavelength region is known as hypsochromic shift और इफेक्ट। तो शॉर्टर वेवलेंथ रीजन मतलब विबग्योर में ब्लू रीजन की तरफ, वायलेट या ब्लू रीजन की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, राइट। सो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। सो यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करें ब्लू शिफ्ट को। सो ब्लू शिफ्ट कैसे ऑब्जर्व करेंगे? पहले आपने देखा था बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब ये था कि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन आप बढ़ा रहे थे, राइट, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही थी, यानी रेड शिफ्ट ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अगर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन को आप कम कर दें, राइट, या इसको रिमूव कर दे, कॉन्जुगेशन को रिमूव कर दे, तो ऑब्वियसली लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट जाएगी। सो इफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड और डिस्ट्रॉयड, कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? बीच बीच में आप मिथिलीन यूनिट CH2 ग्रुप अटैच कर देंगे बाय एडिंग अ CH2 ग्रुप। द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। ये देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, इसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करते हुए 4 यूनिट्स है, CH डबल बॉन्ड CH2। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ये दी हुई है, दैट इज हायर। वैल्यू हैज नॉट बीन गिवन, बट वी हैव टू कंपेयर द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दीज 2 कंपाउंड्स। इस कंपाउंड के लिए देखेंगे तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बीच में हमने CH2 यूनिट इंसर्ट कर दी। इसका मतलब कि ये जो कॉन्जुगेशन में बॉन्ड्स थे ना, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ रहा था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सो ऑन। यहाँ पर CH2 यूनिट आ गई, यानी कि कॉन्जुगेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, डिस्टर्ब कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू लोअर हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप बताएंगे इसकी फर्स्ट कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, राइट। So here we can see that we have observed 2 shifts, bathochromic shift, that is red shift, and hypsochromic shift, that is blue shift. Now another effect is related to intensity effect, intensity shift, right. So hyperchromic, right. So it is an effect
ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, यानी यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स की बात कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन मैक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको बोल रहे हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ये कब होता है? ये जनरली तभी होता है जब हम ऑक्सोक्रोम्स में अटैच करते हैं, राइट, क्रोमोफोर में। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑक्सोक्रोम यूजुअली इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज एप्सिलॉन मैक्स। तो जब भी हम ऑक्सोक्रोम को अटैच करेंगे क्रोमोफोर के साथ तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ता है और एप्सिलॉन मैक्स भी बढ़ता है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होगा? इट इज एन इफेक्ट ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, दैट इज एप्सिलॉन मैक्स, डिक्रीजेज, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम क्लियरली आपको एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि जब आपने एब्जॉर्प्शन लॉ डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि एब्जॉर्प्शन लॉ जब हम स्टडी करते हैं या स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं यूवी विजुअल, तो उसमें एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पर ये हम एप्सिलॉन मैक्स है और यहाँ पर लैम्डा, एप्सिलॉन और लैम्डा। तो अब आप देखिए अगर ये जो शिफ्ट है यानी एब्जॉर्प्शन, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ रीजन, तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, रेड शिफ्ट हो गया, यानी ये लैम्डा मान लीजिए यहाँ पर है किसी कंपाउंड का और ये शिफ्ट हो जा रहा है इधर, राइट। और कब शिफ्ट हो रहा है? जब आपने ऑक्सोक्रोम ऐड किया था, तो ये रेड शिफ्ट हो गया। और अगर ये लोअर वेवलेंथ रीजन की तरफ जा रहा है तो ये ब्लू शिफ्ट हो गया। ब्लू शिफ्ट मतलब हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, राइट। और अगर ये एप्सिलॉन मैक्स ही बढ़ रहा है यानी इंटेंसिटी बढ़ रही है, राइट, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, तो ये एप्सिलॉन मैक्स बढ़ रहा है, तो ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया। और ये हो गया हाइपोक्रोमिक यानी एप्सिलॉन मैक्स घट रहा है। तो इस तरह से 4 इफेक्ट्स को आप इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक या हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। सो इन दैट वे दीज आर 4 शिफ्ट्स और इफेक्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपको याद आनी चाहिए कि इससे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को पता कर सकते हैं या डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कर सकते हैं। सो लेट अस सी वन बाय वन। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यानी क्रोमोफोर्स अगर हैं, फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो हम पता कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम्स, ऑक्सोक्रोम्स के बारे में हमें आइडिया चल सकता है। डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया? double bond, single bond, double bond, alternately placed double bond and single bonds are present, then we can identify from this technique. Then extent of conjugation घट रहा है या बढ़ रहा है, वो भी हम लोग ने अभी देखा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन घट रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। सो द थर्ड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल। फिर अब अगर हमको डिस्टिंक्शन करना है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में, तो भी जिसमें वैल्यू ज़्यादा है वो कॉन्जुगेटेड, लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है वो कॉन्जुगेटेड हो गया, जिसमें कम है वो अनकॉन्जुगेटेड हो गया। स्टेरिक स्ट्रेन का भी स्टडी कर सकते हैं और इसका इन्फ्लुएंस लैम्डा मैक्स पर क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। स्टेरिक स्ट्रेन का बहुत इंपैक्ट पड़ता है लैम्डा मैक्स पर। और साथ में डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब सिस और ट्रांस आइसोमर्स को भी हम लोग लैम्डा मैक्स की वैल्यू से पता कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि सिस फॉर्म है किसी ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, तो सिस फॉर्म में चूंकि स्टेरिक स्ट्रेन भी हाई होता है और कॉन्जुगेशन थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, जबकि ट्रांस आइसोमर में लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड, किसी भी अननोन कंपाउंड को अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जैसा हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल जब डिस्कस किया था तो बताया था कि नोन कंपाउंड से कंपेयर करके उसके स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जैसे अभी हम लोगों ने लिया था बेंजीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रेसीन हो गया, सो दीज आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो इन सब की हेल्प से हम इसकी अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द कंसेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड कैन बी clarified with the help of some examples, with the help of some problems. So here are some problems. So let us consider some problems on UV visible spectroscopy. So the first question, this is the simplest question that we can consider. Predict the transitions involved in the following compounds: methyl alcohol, alkynes, carbonyl compounds and methyl chloride, right? So let us take one by one. पहला ले लिया methyl alcohol. अब आप देखिए methyl alcohol का structure अगर आप देखेंगे, सो ये CH3OH होता है, O के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। सो कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, ये इससे क्लियर स्ट्रक्चर से क्लियर हो पाता है। ये अगर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो सिग्मा स्टार में जाएगा, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। उसके अलावा ये जो N है वो कहाँ जाएगा,
N2 sigma star में जाएगा, right? So N2 sigma star transition is possible. So here in this particular case, wherein sigma bond and N electrons are present, two types of transitions are possible, sigma to sigma star and N to sigma star. Clear? Now let us consider acetylene. कोई भी एल्काइन ले लें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है. सो सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है ट्रांजिशन, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. लेकिन साथ में पाई बॉन्ड भी है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है. तो यहाँ पर आपने लिखा दो तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. Now let us consider the third example, which is carbonyl compound. Carbonyl compound में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. दोनों के केस में हम क्या देखेंगे, CH3CH double bond O. Now here you can see sigma bond is present, pi bond is present, N electron is present. So in this case, what are the possibilities? Sigma to sigma star हो सकता है, right? N to sigma star हो सकता है, फिर pi to pi star हो सकता है और N to pi star हो सकता है. So in that way, all four transitions are possible in case of carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones. सो आप याद रखेंगे कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें चार तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, राइट. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट एग्जांपल. अगेन मिथिल क्लोराइड, ये बिल्कुल मिथिल अल्कोहल की तरह ही एग्जांपल है. सिग्मा बॉन्ड है और N इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर दो तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड N टू सिग्मा स्टार. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम देखिए क्या कह रही है. द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन शोज टू पीक्स एट लैम्डा मैक्स 189 नैनोमीटर एंड लैम्डा मैक्स 273 नैनोमीटर. आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फॉर ईच पीक. अभी एसीटोन का स्ट्रक्चर देख लीजिए. एसीटोन के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड है, राइट, पाई बॉन्ड है और N इलेक्ट्रॉन्स है. अभी हम लोग ने पहले एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया और यहाँ स्ट्रक्चर देख के भी आपको पता चल रहा है कि चारों तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल है, sigma to sigma star, N to sigma star, pi to pi star and N to pi star. All four transitions are possible. But question में क्या दिया हुआ है, केवल दो लैम्डा मैक्स की वैल्यू दी गई है. सो अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब चार तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं और अगर केवल दो वैल्यूज दी गई हैं तो हम ऊपर के दो, यानी जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार की, फिर N टू सिग्मा स्टार की, फिर उससे कम पाई टू पाई स्टार की और सबसे कम होती है N टू पाई स्टार की. तो जो हायर एनर्जी के ट्रांजिशंस होते हैं, हायर वेवलेंथ के ट्रांजिशंस होते हैं, लोअर वेवलेंथ, सॉरी हायर एनर्जी मतलब लोअर वेवलेंथ, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर दीज टू ट्रांजिशंस ओनली फॉर दीज टू लैम्डा मैक्स वैल्यूज, राइट. तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो दो वैल्यूज हैं वो पाई टू पाई स्टार और N टू पाई स्टार को रिप्रेजेंट कर रही हैं. अभी दूसरा पॉइंट क्या है कि कौन सी वैल्यू किस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, पाई टू पाई स्टार की ज़्यादा है. जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो लोअर लैम्डा मैक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 189 हो जाएगी, राइट. और N टू पाई स्टार, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसके लिए N टू पाई स्टार के लिए कौन सा लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, जिसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है. तो ये हो गया. तो यहाँ पर लास्ट में हमने लिखा है पीक एट lambda max 273 nanometer is due to N to pi star transition and the peak at lambda max 189 nanometer is due to pi to pi star transition, right. So we have understood that how do we represent the electronic transitions and then how do we correlate these electronic transitions with the lambda max values, right. And then let us come to the third problem. Which of the following compounds will have higher lambda max? अब दो compounds दिए हुए, इनमें से पूछा है किसकी lambda max की वैल्यू ज़्यादा है. तो lambda max की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका उसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा. सो अब आप देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C6H5, ऑब्वियसली यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पर आ जाइए तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, ये कॉन्जुगेशन को बढ़ा दिया, यानी यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH ग्रुप ऐड हो गया है. तो यहाँ पर ये जो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो इसके कॉन्जुगेशन में थे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद बेंजीन रिंग आ गई, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ गया. सो कंपाउंड 2 विल हैव हायर लैम्डा मैक्स वैल्यू ड्यू टू द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज aniline absorbs at lambda max 230 nanometer, but in acid solution it absorbs at lambda max 203 nanometer, that is shorter wavelength region. Explain, right. अभी क्वेश्चन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू दी हुई है एनिलीन की, जो कि बताया गया है कि 230 नैनोमीटर है, बट बोल रहे हैं कि
एसिड सोल्यूशन में जैसे इसको आप डालते हैं तो ये वैल्यू घट जाती है, क्यों? अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। इन एसिड सोल्यूशन एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन ड्यू टू द प्रोटोनेशन। ये है एनिलीन C6H5NH2, आपने इसको HCl में डाला तो ये बन गया C6H5NH3 प्लस प्लस Cl माइनस, यानी एनिलीनियम आयन बन गया, राइट। नाउ एनिलीनियम आयन सो फॉर्म्ड कंटेन्स नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए यहाँ पर ये एनिलीन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये एनिलीनियम आयन C6H5NH3 प्लस में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हट गया, बल्कि यहाँ पर प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटॉन आ गया। सो यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा था ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन मतलब ये डीलोकलाइजेशन मूव करने लगता है, रेजोनेंस होने लगता है, तो ये रिमूव हो गया। कॉन्जुगेशन यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर रिमूव हो गया। Therefore conjugation is removed and hence lambda max gets reduced। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 230 है लेकिन इसकी वैल्यू 203 नैनोमीटर हो जा रही है, राइट। सो ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, इस वजह से इसकी वैल्यू कम हो गई। नाउ दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बीर-लैम्बर्ट लॉ, राइट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स फॉर कंपाउंड एक्स। एक कंपाउंड एक्स है जिसके लिए लैम्डा एप्सिलॉन मैक्स वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁵ m, राइट, और इसकी जो लेंथ है सोल्यूशन की वो दी हुई है 1 सेंटीमीटर, एब्जॉर्बेंस A 0.63 और लैम्डा मैक्स की वैल्यू दी हुई है। वी नो दैट A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL वेयर C इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड L इज द लेंथ ऑफ द सोल्यूशन। सो एप्सिलॉन मैक्स हमें निकालना है, सो एप्सिलॉन मैक्स इज इक्वल्स टू A अपॉन CL। A की वैल्यू हमने पुटअप की यहाँ पर, देन C की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू दी है। सो दिस इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वेर इन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन मैक्स। Again, this problem is related to Beer-Lambert law. If the path length of a beam of light through the sample is doubled, यानी कि L को डबल कर दें और concentration को हाफ कर दें, and the concentration is made half, what will be the change in the value of absorbance? So देखिए A is equals to epsilon CL होता है, तो A डैश को निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन अगर इसको पाथ लेंथ को डबल कर दिया और C को हाफ कर दिया तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगेन ये एप्सिलॉन CL ही आ जा रहा है। इसके मतलब A डैश इज इक्वल्स टू A। तो आप क्या लिखेंगे? देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस, राइट। क्वेश्चन है कि अगर आपने पाथ लेंथ को डबल कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया तो एब्जॉर्बेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल आउट होने के बाद एप्सिलॉन CL ही आ रहा है, तो A डैश इज इक्वल्स टू A, दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन एब्जॉर्बेंस वैल्यू, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई बीटा कैरोटीन इज येलो इन कलर। बीटा कैरोटीन या कैरोटीन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, क्यों ये येलो होता है। तो येलो कलर से आप ये समझ लीजिएगा कि इट इज रिलेटेड टू the conjugation, it is related to the absorption in the visible region, it is related to the ultraviolet visible spectroscopy, right. So the greater the extent of conjugation, the greater the length of the conjugated system, higher is the shift towards longer wavelength region. lambda max भी बढ़ेगा और epsilon max भी बढ़ेगा। तो कैरोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करते करते ये 11 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को आप मेमोराइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हैं, और ऐसा प्रूवन है कि जब किसी भी कंपाउंड में 10 डबल बॉन्ड से ज़्यादा कॉन्जुगेशन में होते हैं तो लैम्डा मैक्स मूव्स इनटू विजिबल रीजन में चला जाता है, और इसी वजह से कैरोटीन येलो, बीटा कैरोटीन येलो होता है, राइट। और इन जनरल जो ऑब्जर्व्ड कलर है, राइट, और या ट्रांसमिटेड जो कलर जो हमारी आंखों में कलर दिखाई देता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब्ड। जो भी कलर एब्जॉर्ब होता है किसी भी रीजन में, विप ग्योर में से जो भी कलर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, राइट। सो येलो दिख रहा है तो ब्लू का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, सो दैट इज वाई बीटा कैरोटीन इज येलो इन कलर, राइट। So this is how we have understood the basic concepts of spectroscopy and then followed by its application, and also we have considered the Beta-Carotene shift or whatever 4 shifts we have observed, like absorption and intensity shifts. Chromophores क्या हैं, Auxochromes क्या है, apart from that we have considered few examples. So I request all of you to go through all the lectures, all the topics related to UV visible spectroscopy, and I have covered the UV visible spectroscopy and the basic principle of spectroscopy in 2 lectures. So go through all these 2 lectures, try to find out some problem, try to solve some problems, and if you have any query, write to me and then you can discuss. Thank you very much.